Good morning. Today is 20th December 2016. Now we discuss the geographical thought, and it is mainly we discuss part 1, and now we start part 2. So contribution of of different school, like British school, like French school, German school. So now we discuss, because we are now studying in geographical thought, so it is important to understand all the thoughts, okay, and all the contributing persons, they do also important for the geography. So now we discuss contribution of British school, okay. After publication, जो British school जो है, after publication of origin and of the species by Darwin, ब्रिटिश स्कूल में हमने अगर देखा जाए क्या ना, ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज का ओरिजिन हुआ था, डार्विन जो कॉन्सेप्ट दिया था कि 1859 में, ओके, 1859 में द ब्रिटिश स्कॉलर स्टार्टेड, द ब्रिटिश स्कॉलर जो है वो स्टार्टेड प्लेइंग अटेंशन ऑन टू द अर्थ एज होम ऑफ मैन, ओके। जो अर्थ है वो होम है, मनुष्य का होम है, ओके, ब्रिटिश स्कॉलर ने कहा है। एंड जियोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए डिसिप्लिन इन द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिश सो जियोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए डिसिप्लिन ऑफ द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस्ड फॉर द जियोग्राफी जो 19th सेंचुरी में, ओके। Halford Mackinder, 1861 to 1947. Okay, he is known as the founder of British School of Geography. Okay, Mackinder. Please remember. Okay, the School of Geography was of the view of geography is a bridge between humanities and natural sciences. Geography is the bridge between humanities and natural sciences. Between history and like between history and geology. Okay, he used this idea to interpret political affairs, to interpret world political affairs. Okay, so Mackinder used this idea where he used idea like world political affairs में उन्होंने यूज किया है। In 1904 he framed the concept which has known as, हम उसको क्या जानते हैं ना, हार्टलैंड थ्योरी जो है उसको हम हार्टलैंड थ्योरी जानते हैं, ओके, ओके, ऑफ मैकिंडर, हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर। ही आइडेंटिफाइड एज ए वर्ल्ड आइलैंड कंसिस्टेंट, जो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ कंटेनर्स में, ऑफ यूरोप एंड एशिया के में, ओके। According to the heartland, okay, the heartland is the part of the world which is, heartland जो part है world का which is an inaccessible, okay, this is the area of low population, जहाँ पर बहुत ही कम population है, okay, बहुत ही कम population है, expressed in his strategy as follows, जो एक्सप्रेस कर रहा है his strategy में as follows, okay, who rules East Europe comments heartland, okay, जो who rules, जो रूल्स करेगा ईस्ट यूरोप को, कमेंट्स हार्टलैंड करेगा, हार्टलैंड के ऊपर कमेंट करेगा, who rules heartland comments ईस्ट यूरोप, जो हार्टलैंड में रूल्स करेगा वो कमेंट करेगा कहाँ पर, कमेंट द वर्ल्ड आइलैंड का, कमेंट्स वर्ल्ड आइलैंड। Who rules the world island, जो वर्ल्ड आइलैंड में कमेंट करेगा, रूल्स करेगा, वो कमेंट्स करेगा कहाँ पर, वर्ल्ड में। सो प्लीज रिमेम्बर इट्स, ओके। सो फर्स्ट क्या है, यूरोप का अंदर एक रूल्स होगा, उसके बाद कमेंट करेगा हार्टलैंड में, उसके बाद रूल्स होगा, उसके बाद वर्ल्ड आइलैंड में, उसके बाद वर्ल्ड आइलैंड में और रूल्स होगा, उसके बाद वो वर्ल्ड में होगा, ओके, कमेंट होगा, ओके। सम स्कॉलर are of the opinion that Mackinder's thinking was a generation ahead of this time, okay। सम स्कॉलर जो उन्होंने सोचा क्या, मैकिंडर का जो थॉट है वो जनरेशन अहेड ऑफ दिस टाइम, ओके। द ग्रेट वर्क्स ऑफ मैकिंडर आर ब्रिटेन, उसका मेन जो वर्क्स किया था ब्रिटेन, एंड द बाल्टिक सी, ओके,
तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा. What is the and democratic ideas? Okay, so democratic ideas and realities is concept. Okay. Okay. Next. Okay, and democratic ideas and realities. Okay. Mackinder was also responsible for laying foundation of uh, laying foundation of Mackinder was also responsible for laying foundation of historical geography in Britain. Mackinder क्या responsible for क्या पर responsible for laying foundation of historical geography in Britain. जो historical geography in Britain में अंदर foundation था. Stressed the stressed the importance of geography, trying to rebuild past geographies and showing how sequence and to change led to the present observable features. Okay, कैसे क्या geography he also क्या उन्होंने क्या काम किया ना, past का जो geography है वो कैसे चेंज हो रहा है. ओके, प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन के फीचर्स को. सो पास्ट का जो कोई इवेंट जो कैसे अब चेंज हो रहा है, तो उसको उन्होंने कहा. R. Robert Mill, a contemporary of Mackinder's, wrote a book, Realm of Nature. R. Robert Mill है एक contemporary of Mackinder, wrote उस टाइम का जो लिखा था क्या ना, Realm of Nature, in which discuss about the जहाँ पर about the human race के बारे में उन्होंने कहा. ओके, Sir Patrick Gates was a Scottish geographer. Sir Patrick Gates जो है एक Scottish geographer है. Research on family life. ओके, जहाँ फैमिली लाइफ में लाइफ स्टाइल रिसर्च किया था उन्होंने. एंड फैमिली बजट गेटिस फैमिली बजट में. सो गेटिस वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडीज. उन्होंने फाउंडर है गेटिस, पैट्रिक गेट्स फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडीज में का. ओके, so Geddes and his follower established the Live Play Society. So Geddes and his follower are established क्या established किया था Love Play Society. Okay, in order to foster regional survey के बारे में उन्होंने काम किया. The Geddes scheme of regional survey for showing the interaction of folk and work in given the following table. उसको काम क्या उन्होंने क्या उसको हमने टेबल में दिखाया. Okay. Folk and work in given is given in the following table. Okay. So place work natural advantage, place folk native. Okay, so place क्या work place क्या posture fields mines workshops. Okay, so place workplace and folk place and place work folk occupation. So यहाँ पर place folk. Okay, then native work folk and folk. यहाँ पर इंडस्ट्रीज. ओके, माइंस है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्री. ओके, फॉर विलेज होम. ओके, ऑक्यूपेशन. ओके, so Geddes held a view that geography is applied science dealing with what ought to be. Okay, Howardson. Okay, 1865 to 1915. Okay, prepared a scheme dividing the world into natural regions. Okay, उन्होंने डिवाइड किया वर्ल्ड को नेचुरल रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस फीचर्स. बेसिस ऑफ क्या? सरफेस फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. A.G. Ojai live in his book Great Britain. Okay, essays in regional geography gave a glimpse of the regional variation in the physical and cultural landscape of Britain. So उन्होंने क्या कहा, A.G. Ojai जो उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर बुक लिखा है,
ओके, जैसे इन द रीजनल ज्योग्राफी इसका नाम है। ओके, जो रीजनल वेरिएशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन में का जो वेरिएशन है, तो उसके बारे में वो लिखा। उसके बाद रॉक्स भी प्रपोज्ड ए स्कीम एक्सप्लेनिंग प्रपोज किया था एक स्कीम को, जो एक्सप्लेन कर रहा था हाउ शुड द रीजनल स्टडीज प्रोसीडेड, कैसे रीजनल स्टडीज प्रोसीड होगा। अकॉर्डिंग टू हिम ए सिस्टमेटिक स्टडी, जहाँ पर उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में बताया, शुड डील विथ जियोलॉजी, जो डील करेगा किसके साथ, जियोलॉजी के साथ, ड्रेनेज के साथ, कोस्ट लाइन के साथ, एंड क्लाइमेट, वेजिटेशन, एंड टू डिमार्केट नेचुरल रिजर्व्स। तो डिमार्केट क्या करेंगे, हम डिमार्केट करेंगे नेचुरल रिजर्व्स के, एंड दिस शुड बी फॉलो बाय द मैन्स रिलेशन। दो इसको हमने कैसे होगा, मैन रिलेशन टू द फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो हम काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो मैन रिलेशन विद द फिजिकल, मैन का रिलेशन क्या है इस फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, उनके बारे में उन्होंने लिखा। रॉक्सबी, ओके, देखिए, तो इन द इंटर वार्स पीरियड, जो इंटर वार्स पीरियड में चल रहा था, इकोनॉमिक जियोग्राफी वाज ए पॉपुलर फील्ड हुआ था इन द स्टडी इन ब्रिटेन। ओके, तो यहाँ पर ब्रिटेन में जो पॉपुलर हो गया था, जो वर्ल्ड का था, बुखानन रोड इन पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड, बुखानन ने लिखा था पेस्टोरल इंडस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में। ओके, डब्ल्यू स्मिथ produced economic geography, okay, of Britain. Okay, W. Smith, economic geography of Britain. Okay, so please remember it. And Chisholm produced handbook of commercial geography. Chisholm. Okay, Robert Mill wrote general geography. Okay, please remember it. Okay, Robert Mill wrote general geography. At the beginning of 20th century, agriculture geography became an important field of geographical research. Okay, 20th century में एग्रीकल्चर जो जियोग्राफी है, जो एग्रीकल्चर जियोग्राफी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था फील्ड जियोग्राफिकल रिसर्च के लिए ब्रिटेन में। स्टैम्प प्रिपेयर्ड 1920s the land use maps of Britain. After the Second World War, they become the basis for the reconstruction of Britain. नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन स्कूल। ओके, अमेरिकन स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अर्नोल्ड गायट वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन अमेरिका। She explored the Appalachian mountains for over 30 years. Okay, उन्होंने एक्सप्लोर किया था द एप्लेशियन माउंटेन्स for 30 years, for over 30 years, and made some 12,000 observations and collected meteorological data. William Morris Davis, 1850। ओके, उन्होंने अर्नोल्ड गायट जो फर्स्ट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी इन अमेरिका ही एक्सप्लोर कर रहा था एप्लेशियन माउंटेन्स को फॉर ओवर 30 ईयर्स में उन्होंने एक्सप्लोर किया था, एंड मेड सम 12,000 ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड मेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया था उन्होंने। एंड विलियम मॉरिस डेविस जो वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स में विलियम मॉरिस डेविस का नाम हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904। Okay, American Association of American Geography established in 1904. He developed the theory of cycle of evolution. हम जानते हैं cycle of evolution, first cycle of evolution, second cycle. Okay, तो हम जानते हैं कि उन्होंने यही काम किया था, which he defined as geomorphological cycle. Okay, उन्होंने उसको geomorphological cycle कहा था. He has also referred to it as topographical cycle. He has also referred किया करा था it as a topographical cycle. Okay, he postulated when an initial surface is raised, कब रेस्ट करता है कोई भी सरफेस। ओके, किसके लिए, कौन सी कारण था, रिवर बिगिन टू इरोड, रिवर कब वो स्टार्ट करते हैं इरोशन। ओके, सेकंड क्या है,
सेकेंड है द सरफेस इज काट बाय नैरो वी शेप, सरफेस जो नैरो वी शेप में वैली में काटते हैं जब रिवर, तो दैट आर एक्सटेंडेड हेडवर्ड एज मोर एंड मोर ऑफ द इनिशियल सरफेस इज कंज्यूम। सो हेडवर्ड इरोशन में वो भी हो जाता है। तो हेडवर्ड इरोशन मोर और मोर होते हैं कब, जो सरफेस कंज्यूम दैट इनिशियल मोर ऑफ द इनिशियल सरफेस इज कंज्यूम्ड। ओके, वैली जब नैरो में काटते हैं ओके रिवर ने, बट रिवर्स कैन नॉट कट डाउन देयर वैली इनडिफिनेटली। रिवर काट नहीं काटते हैं देयर वैली को इंडिफिनेटली। ओके, देयर इज ए बेस लेवल बिलो व्हिच रिवर्स कैंट कट ए लेवल डिटरमाइंड। ओके, तो वहाँ पर एक बेस लेवल है बिलो में, तो जो रिवर नहीं काटता है लेवल ऑफ डिटरमिनेट बाय द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर इनटू व्हिच स्ट्रीम फ्लोज। ओके, अकॉर्डिंग टू डेविस रीजनल जियोग्राफी सिक्स टू डिस्क्राइब क्या करते हैं, सिक्स टू डिस्क्राइब जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन एरिया। वहाँ पर क्या ना डिस्क्राइब करते हैं जियोग्राफिकल जो एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन एरिया में, तो इन द टोटलिटी ऑफ द एक्सिस्ट टुगेदर इन द नेचुरल combinations, okay, and correlation. He insisted upon regional description के being homogeneous, being जो homologous में होता है। ओके, रीजनल डिस्क्रिप्शन बिंग होमोलॉगस में होता है, दैट इज इन ऑल एस्पेक्ट लैंड क्लाइमेट वेजिटेशन एनिमल एंड मैन शुड रिसीव, इस मैन जो रिसीव इक्वल एम्फेसिस में रिसीव करते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्या रहा, ही क्रिटिसाइज ह्यूमन जियोग्राफर्स फॉर देयर फेलियर इन द बॉडी ऑफ वाटर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया ह्यूमन जियोग्राफर्स का फॉर देयर उनका फेलियर इन द बॉडी ऑफ वाटर में, इनटू व्हिच स्ट्रीम फ्लोज, कहाँ पर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। मार्क जेफरसन, अब इम्पोर्टेंट है, मार्क जेफरसन वाज ए पीपल ऑफ विलियम डेविस मॉरिस। ओके, जो विलियम डेविस का मॉरिस का टाइम का था, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ रियल मैन ओरिएंटेड जियोग्राफी। उन्होंने फाउंडर क्या करा तो रियल मैन ओरिएंटेड जियोग्राफी का। शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइंसिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस। उन्होंने सेंट्रल प्लेस के बारे में बताया कंसेप्ट। ही द लॉज ऑफ प्रीमेट सिटी एंड द सिविलाइजिंग रेल्स। उन्होंने प्रीमेट सिटी के बारे में बताया एंड सिविलाइजिंग रेल्स के बारे में बताया। उसके बाद लेसे Bauman was a product of Jefferson. Okay, the geographer of Central Andes का geography of Central Andes and the pioneer French his work. उन्होंने क्या क्या लिखा, the geography of Central Andes and the pioneer of French his work. He was initially an environmental determinist. Okay, उन्होंने initially क्या ना environmental determinist है, but later he got interested in the importance of role of man and transforming human environment. उन्होंने उनके अब इंटरेस्ट क्या है, कैसे हो नेचुरल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ मैन क्या है ट्रांसफॉर्मिंग एनवायरनमेंट के लिए, उनको जो चेंज करते हैं, तो इसका मैन का क्या रोल है। ही सेड मैन इज चेंजिंग हिमसेल्फ। ओके, उन्होंने क्या कहा, मैन चेंजिंग हिमसेल्फ, द वर्ल्ड गोज अलोंग। ओके, सो उसके बाद जो है ना वर्ल्ड गोज अलोंग में वर्ल्ड जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या मैन चेंजिंग so well as man is changing himself as well as the world as goes along. वर्ल्ड चले जाते हैं लेकिन मैन चेंज होता है टाइम के साथ, मैन खुद को चेंज करते हैं। एलन चर्चिल सैम्पल was an follower of Radgel. एलन चर्चिल सैम्पल जो है वो follower of Radgel. ओके, she studied anthropology in Germany. Okay, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था। she was impressed by Radgel approach. उन्होंने Radgel का अप्रोच को इम्प्रेस्ड हो गया the study of man environment relation में। मैन एनवायरनमेंट का जो थॉट है स्टडी जो Radgel का उसे इम्प्रेस्ड हो गया एलन चर्चिल सैम्पल। सी ट्रैवल टू जापान, उन्होंने जापान गया, चाइना गया, फिलीपींस गया, जावा गया, इंडिया आया, एंड ए नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में वो भी गया।
सी द अथर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ, उन्होंने क्या किया, कहाँ का अथर, अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन में का अथर। तो सी वाज ए डिटर्मिनिस्टिक, ही इन हर बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, in her book he influence of geographical environment. She present her version of the first volume of Radgel's she present her version of the first volume Radgel's anthropographic. According to her, man's relations to his environment are infinitely more numerous and complex than those of the most highly organized plants and animals. उन्होंने क्या कहा ना, मैन का जो रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ आर इनफाइनेटली मोर न्यूमरस है एंड कॉम्प्लेक्स है देन दोज ऑफ द मोस्ट हायर ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, ओके, जो अदर्स प्लांट्स के एनिमल्स से ज़्यादा, ओके। एल्सवर्थ हंटिंगटन, ओके, वाज द पीपल ऑफ डेविस का टाइम का। ही ट्रैवल नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने ट्रैवल किया, यूरोप गया, साउथ अमेरिका आया। उसके बाद ही वॉज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन कर द लाइफ स्टाइल, द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स का, ओके, एंड नेशंस इन द लाइट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। नेशन जो लाइट होते हैं कहाँ से, वेदर एंड क्लाइमेट्स कंडीशन से, वो बहुत अच्छी होते हैं और बुरा होते हैं, ओके। इन हिज बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो उनका बुक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सी asserted that civilization could develop only the regions of stimulating weather, again उन्होंने कहा, क्या कहा, जो उनका वही है बुक है, जो इन हिज बुक civilization and climate, she asserted the civilization could develop only in regions of stimulating weather, okay. So उन्होंने कहा क्या, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट से सिविलाइजेशन डेवलप करते हैं उसका रीजन का ऑफ स्टिमुलेटिंग वेदर कंडीशन में, ओके। ही अदर बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बिकम्स पॉपुलर अमंग हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, स्कॉलर, मेडिएट, एग्रीकल्चरलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, सब इसको पसंद करते हैं। हंटिंगटन consistently followed a quantitative approach उन्होंने फॉलो करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच इन मेजरमेंट ऑफ सिविलाइजेशन को मेजरमेंट करने के लिए। रोनाल्ड डी सॉलिसबरी एस्टेब्लिश्ड द ऑर्गेनाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी ऑफ द शिकागो, सॉलिसबरी, ओके, शिकागो यूनिवर्सिटी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिकल जियोग्राफी, जो इंटरेस्ट किया था कौन, रोलिंड डी सॉलिसबरी, ओके, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी शिकागो यूनिवर्सिटी का, ओके। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिकल जियोग्राफी, हिज मेन वर्क साइकोलॉजी फिजियोग्राफी इज ए क्लासिक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम, ओके। चेंजिंग पैराडाइम, सो हम चेंजिंग पैराडाइम की तरफ जाएंगे। तो चेंजिंग करिए, इन इट वाज ए स्कीपर हु ब्रॉट, सो क्या चेंज हुआ, ओके, इस दो थॉट में, ओके, कैसे चेंज आया। स्कीपर वाज ब्रॉट अबाउट ए चेंज ऑन शिफ्ट पैराडाइम, ओके। स्कीपर ने ब्रॉट किया कि चेंज ऑफ शिफ्ट पैराडाइम व्हेन जब क्रिटिसाइज किया, हडसन उसकी स्कीपर के नाम जानते हैं। तो when he criticized the exceptionalist claim made for the regional paradigm, के उन्होंने जब क्रिटिसाइज किया, ओके, he claimed that the geography is the major regulations, geography जो major regulation refer to special patterns, refer करते special patterns and hints. Geography should be conceived as the science concerned with the formulable of the laws governing the special distribution of certain features of the on the surface of the earth, okay. तो उन्होंने क्या कहा, ही क्लेम दैट द जियोग्राफी दैट इन जियोग्राफी द मेजर जो रेगुलेशंस होते हैं रेफर क्या करते हैं, रेफर टू स्पेशल पैटर्न्स को, एंड हिंस जियोग्राफी शुड बी कंसीव्ड एज ए साइंस कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज, साइंस कंसर्न होगा जियोग्राफी के अंदर, एंड जो लॉज होगा गवर्निंग करेगा क्या, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को एंड ऑफ सर्टेन फीचर्स को, ओके। उसका लॉ होगा, वो कहाँ पर कौन सी फीचर रहेगा उसको हम समझ जाएंगे, ओके।
Schiffer, with his special organization paradigm initiated the quantitative and theoretical revolution in geography. Schiffer क्या कह रहा ना, with his special organization paradigm initiated the quantitative and theoretical revolution in geography के बारे में बताया उन्होंने. Okay. However, the major advances in this regard were made by Peter Haggett. दो advances क्या से आया था, जो पीटर हैगेट के एंड रिचर्ड चोरले एंड डेविस हार्वे के. हैगेट्स का बुक क्या है, लोकेशनल एनालिसिस ऑफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965. हैगेट called for a debate within the subject on the paradigm shift. कैसे शिफ्ट हुआ. ओके, तो बुक्स का नाम जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैगेट का. लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, कहाँ से अब लोकेट कर रहे हैं, अब लोकेशनल एनालिसिस हम कहाँ पर है उसको इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर. ओके, तो लोकेशनल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का किसका ना, हैगेट का. Okay, in modern geography 1967, both Chorley and Haggett started that traditional paradigm in geography. Okay, उन्होंने geography के जो paradigm उनको कैसे change हो रहा है उनके बारे में उन्होंने बताया. is only classificatory and under severe stress. Okay, so geography should adopt an alternative geography should होगा क्या ना, alternative model based paradigm, उसके अंदर एक alternative model होगा and made it clear, and उसको उन्होंने clear कर देंगे क्या, that he developed within the subject not only represents a wider range of methods but also demands of fundamental shift of paradigm. जिसका डिमांड रहेगा क्या ना, फंडामेंटल जो शिफ्ट हो रहा है पैराडाइम के ऊपर, उसके ऊपर उनका डिमांड होगा क्या. लेकिन उसके ऊपर कोई भी मेथड वाइडर रेंज और मेथड नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा. ओके, उसके बाद वेबर क्या कहा, 1977 आइडेंटिफाइड एन एंट्रोपी मैक्सिमाइजिंग पैराडाइम. उन्होंने एंट्रोपी मैक्सिमाइजिंग पैराडाइम के बारे में बताया, व्हिच फोकसेस ऑन लोकेशन मॉडल्स, जो फोकस कर रहा है कहाँ पर, लोकेशन मॉडल की तरफ. ओके, identified and entropy maximizing paradigm which focus on the location model, interaction models. ओके, यहाँ पर देखिए लोकेशनल मॉडल की तरफ ये भी वेबर भी उन्होंने बता रहे हैं. इंटरेक्शन मॉडल ऑन द लोकेशन इंटरेक्शन मॉडल्स. ओके, अकॉर्डिंग टू वेबर रिप्रेजेंट रिसर्च टास्क फेसिंग द इंटरफेस. ओके, टू आइडेंटिफाई, हम क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स व्हिच ऑपरेट अपॉन अर्बन सिस्टम. हमने क्या टू आइडेंटिफाई करते हैं द कंस्टेंट जो है बाधा, जो उसको कंस्टेंट को व्हिच ऑपरेट करेंगे अर्बन सिस्टम को. ओके, to deduce some facts, हम to deduce some facts को हम deduce करेंगे of the economic relation में among the individual within the system. Okay, हमने identify करेगा पहले and constant जो है उसको हम देखेंगे अर्बन में. अब उसके बाद हमने टू डिड्यूस करेंगे, टू डिड्यूस सम फैक्ट्स करेंगे अब द इकोनॉमिक रिलेटेड रिलेशन एंड द इंडिविजुअल फैक्ट को हम देखेंगे विद इन द सिस्टम के अंदर फ्रॉम द यूज ऑफ द फॉर्मुलेशन के यूज करते हैं करूँगा. तो थर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ए थ्योरी विच एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करेंगे द ओरिजिन ऑफ कंस्टेंट्स. ओके, जो ओरिजिन होगा जो कंस्टेंट हमने कंस्ट्रक्ट करें, टू कंस्ट्रक्ट ए थ्योरी, हमने थ्योरी कंस्ट्रक्ट करेंगे विद इन एक्सप्लेनेशन. इसके बाद साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कंस्टेंट, जो उसका कंस्टेंट का ओरिजिन कहाँ पर है. वेबर सेड ओनली व्हेन द थर्ड टास्क हैज बीन अटेम्प्टेड, जो हमने जो थ्योरी कंस्ट्रक्ट किया उसके बाद एक्सप्लेन किया एंड द ओरिजिन उसका कंस्टेंट कहाँ पर है. ओके, तो उसका हम देखा क्या ना, द थर्ड टास्क हैज बीन अटेम्प्टेड देन द पैराडाइम में बी एडिक्वेटली जज. उसके बाद हमने अगर उसको अटेम्प्ट कर लिया तो हमने एडिक्वेटली उसको जज कर सकता हूँ. तो बेरी 1978 में कहा क्या ना, स्टार्टेड दैट द प्लूरलिज्म, उन्होंने प्लूरलिज्म के बारे में बताया एंड इंटर पैराडाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन मच मोर कॉमन. इंटर पैराडाइम ओके कन्फ्लिक्ट जो हो रहा उससे मच मोर कॉमन देन हैव ए पीरियड्स ऑफ नॉर्मल साइंस की तरह नहीं है, वो बहुत ही कॉमन हो गया है. ओके,
ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द डाइवर्सिटी अराइजिंग, जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मोजाइक क्वालिटी ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जो मॉडर्न ज्योग्राफी के जो मॉडर्न क्वालिटी ऑफ जो मॉडर्न ज्योग्राफी में वो आ रहा है, जो पैराडाइम चेंज हो रहा है। दे हैव मूव्ड फ्रॉम वन पैराडाइम टू अनदर, जो एक से अलग जा रहा है। एंड in the last decade that they've been extremely dynamic with multiple ideas, जहाँ पर उनका multiple ideas है and origins है modern geography का, could rightly be characterized as a mosaic within mosaic geography. At present in the theories of the paradigm crisis because a larger accumulation of various kinds of problems हम देख रहा हूँ which cannot be solved within the framework of the ruling paradigm. सामने बहुत सारी लार्जर accumulation of various kinds of problem देख रहा हूँ जो कैनॉट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ फ्रेमवर्क ऑफ द रूलिंग पैराडाइम्स को रूल करने के लिए. So that's why today's discussion is now stopped, and I think it will be help to you, and thanks to you, and please पढ़ते रहें प्लीज़ आप. ओके, थैंक यू.